مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ایک کا نام ماں ہے اور ایک کا نام باپ ہے۔ آپ دنیا کا مشاہدہ کرو، اگر ماں اور باپ اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھی کر دے تو زمانہ اس کی تعریف کیا کرتا ہے۔ اگر ماں اور باپ اپنے بیٹے کو ایک اچھی تعلیم دے دے تو بیٹا ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتا ہے۔ حضرات، آپ دنیا کا جائزہ لیتے چلے جائیں، آج بہت سارے بیٹے ہیں، پراپرٹی بھی ان کے ساتھ ہے، دولتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں ایسا دیکھتے ہوں گے کہ بیٹا ایسا نیک ہو جو اپنے ایک آواز پر اپنے ماں کے فاتحے کے اوپر اتنے علماء کرام کو اکٹھا کر لیا ہو۔ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، آج ان کی ماں کی روح بھی اس قبرستان کے اندر خوشیوں سے جھوم رہی ہوگی اور رب کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہی ہوگی، اے رب کائنات، میں نے اپنے بیٹے کو کوئی اور تعلیم نہیں دیا ہے بلکہ اس تعلیم کو دیا ہے جس تعلیم کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اس تعلیم کو سیکھنا فرض ہے۔ حضرات، اگر آپ تعلیم اپنے ماں اپنے بیٹے کو اچھی سے اچھی دیں گے، آپ اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دیں گے تو یاد رکھو بیٹا آپ کے مرنے کے بعد پراپرٹیوں کے بانٹنے کا مطالبہ نہیں کرے گا، آپ کے دولتوں کو ڈھونڈنے کا مطالبہ نہیں کرے گا، بلکہ تیرا بیٹا یہی کہے گا پراپرٹی کیا چیز ہے، میری ماں تو چلی گئی ہے، ماں کے نام سے ہم فاتحہ تو دلا دیں، ماں کے نام سے ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان کے نام پہ خیرات لٹا دیں، غریبوں میں خیرات لٹا دیں۔ حضرات، وہ ماں کی ممتا رہتی ہے۔ حضرات، دنیا میں تمام چیزیں مل جائیں گی، دنیا کی تمام چیزیں دولتوں سے خریدی جا سکتی ہیں، دنیا کی تمام چیزیں روپے اور ڈالروں سے خریدی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھنا کبھی ماں کی محبت تو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ آپ اس کے دلوں سے پوچھو جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے، آپ اس سے پوچھو جس کا باپ کا سایہ جس کے سروں سے اٹھ گیا ہو۔ حضرات، یہ ماں کی محبت ہے۔ آپ جن کی ماں زندہ ہے وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ اپنے ماں کی دعا لیتے ہوئے چلے۔ حضرات، آج ہم دعا کرنے کے لیے، دعا کروانے کے لیے نہ جانے کتنے بڑے بڑے پیروں کے سامنے گھومتے ہیں، نہ جانے کتنے مولویوں کے پیچھے گھومتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ تم کو تمام چیزیں دعا تو کرا لو گے، لیکن وہاں دعا قبول ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن رب کائنات نے اسی زمین کے اوپر ایک ایسی ذات کو پیدا کیا ہے جس کی دعا تو قبول ہوگی۔ اگر تم اپنے ماں کے کلبے کو چوم کر کے ماں کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھوا کر اپنے لیے دعا کرا لیے تو تیری دعا ماں کے ہاتھ گرنے سے پہلے اس دعا کو باب اجابت سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات، ماں کی محبت ہے۔ آؤ چلو دیکھتے ہیں مخدوم ماہمی کو کون نہیں جانتا ہے۔ مخدوم ماہمی کی مزار وہی بمبئی کی سرزمین پر ہے، لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھ کر کے چلے آتے ہیں، لیکن آؤ اپنے ذہن کو قریب کر لو، مخدوم ماہمی کے زندگی کو دیکھو۔ مخدوم ماہمی کا بچپنے کا عالم ہے، مخدوم ماہمی کے سروں سے پاک کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ ان کی ماں ہے، ضعیف ہے، نابینا ہے، ان کی ماں نہیں نابینا ہے، اپنے ماں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ان کے دلوں کے اندر یہ مچلنے لگا۔ مخدوم ماہمی اپنے ماں کی بارگاہ میں آ گئے اور کہتے ہیں امی جان مجھے آپ اجازت دے دو، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا ہے ہر مرد اور عورت کے اوپر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ مخدوم ماہمی کی ماں کہتی ہے بیٹا اگر تو چلا جائے گا تو میرا خیال کون رکھے گا؟ مخدوم ماہمی کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد کہتے ماں مجھے بہت محبت ہے، میرے دلوں میں یہ خوشیاں مچل رہی ہیں کہ میں بھی جا کر کے علم دین سیکھوں، مصطفیٰ کی شریعت کو پڑھ لوں، مصطفیٰ کے شریعت کو قریب سے دیکھ لوں، بخاری کی وہ حدیثیں پڑھ لوں، ترمذی کی وہ حدیثیں پڑھ لوں۔ مخدوم ماہمی یہ کہتے چلے جاتے ہیں اور کہتے میری
के बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मखदूम माहिमी की माँ कहती है, अरे मखदूम माहिमी सुन सुन, अगर तू इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता है तो तेरी माँ तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। इतना कहना था। मखदूम माहिमी की आंखों में आंसू आ जाता है, अपने माँ से लिपट जाते हैं और कहते मेरी माँ मैं नहीं अब कहीं जाऊंगा, अब तुझे छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मखदूम माहिमी दिल के अंदर ये अरमान लिए हुए हैं, लेकिन सोचते हैं काश अगर माँ इजाजत दे देती तो मैं भी मुस्तफा के शरीयत को दिल सीखने के लिए चलता। हजरात इतना कहना था। मखदूम माहिमी अपने माँ के खिदमत में लगे हुए हैं। सुबह का सफेद सुबह का सूरज जब निकला है, मखदूम माहिमी सोचते हैं लाओ चलो समंदर के किनारे तफरीह कर आओ। समंदर के किनारे जाते हैं और वहाँ बैठ करके रोने लगते हैं। क्या देखते हैं, एक हसीनो जमील, एक खूबसूरत चेहरा मेरे सामने है। उसने अर्ज किया ये बच्चा रो क्यों रहा है, रोने की वजह क्या है? उसको वो मखदूम माहिमी कहते हैं आप हैं कौन? इतना कहना था। कहते मुझे तुम जानते नहीं हो, मुझे लोग हजरत खिज्र कहते हैं, लोग हमको खिज्र के नाम से जानते हैं। इतना कहना था। मखदूम माहिमी कदमों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं सरकार मैं इल्म दीन सीखने के लिए बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन मेरी माँ ज़ईफ है, मेरे माँ की कोई खिदमत करने वाला नहीं है, इसलिए मैं अपने माँ के चौखट को छोड़ करके जा नहीं सकता हूँ। इतना कहना था। हजरत खिज्र कहते हैं एक बात का मुझसे वादा करो, और वादा अगर तुम कर लिए तो मैं रोजाना तुमको इल्म दीन सिखाने के लिए इसी सरजमीन पर आऊंगा, इसी समंदर के किनारे आऊंगा। इतना कहना था। मखदूम माहिमी कहते हैं मैं आपकी एक शर्त नहीं बल्कि हजारों शर्त मान लूंगा, आप अपनी शर्त को बताएं। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम कहते हैं हजार शर्त मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक शर्त मानने की जरूरत है। इतना कहना था। हजरत खिज्र कहते हैं एक बात का वादा कर लो कि काम किसी को बताना नहीं, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, कौन मुझे पढ़ा रहा है। मखदूम माहिमी कहते हैं ठीक है मैं किसी से नहीं बताऊंगा। ये सिलसिला चलता रहा। मखदूम माहिमी की माँ कहती है बेटा रोज आना, सुबह को वक्त जाता कहाँ है, मामला क्या है? अब मखदूम माहिमी क्या कहे? मखदूम माहिमी माँ से कभी झूठ भी नहीं बोले थे, क्योंकि उनकी माँ ने कभी झूठ की सबक भी नहीं उनको सिखाई थी। इतना कहने के बाद मखदूम माहिमी सोचते हैं अगर माँ से ये राज को छुपा लिया तो मेरी माँ नाराज हो जाएगी, अगर राज को बता दिया तो कल से हजरत खिज्र नहीं आएंगे। इतना कहना था। मखदूम माहिमी कहते हैं ए अम्मी जान मैं उस समंदर के किनारे जा रहा हूँ और मुझे हजरत खिज्र तालीम दे रहे हैं। इतना कहने के बाद मखदूम माहिमी के आंख से आंसू निकल पड़ता है और रोने लगते हैं। मखदूम माहिमी की माँ कहती है बेटा रोने की वजह क्या है, आखिरकार तू रो क्यों रहा है? इतना कहने के बाद हजरत मखदूम माहिमी कहते हैं अम्मी जान हजरत खिज्र ने मुझसे वादा लिया था ये राज अगर किसी से बता दिए तो मैं आऊंगा नहीं, अब कल से हजरत खिज्र आएंगे नहीं। मखदूम माहिमी के माँ का हाथ उठा है और दुआ करती है ए रब्बे कायनात कल से अगर खिज्र आया नहीं, कल से खिज्र तो आएगा नहीं, लेकिन मेरे बेटे को ऐसा आलिम दीन बना दे ताकि पूरी दुनिया इनको याद करे। मखदूम माहिमी की माँ ये रब की बारगाह में एक दुआ एक से एक आग के शोलों की तरह ऐसी टकराई है, रब की रहमतें पुकार देती है। मखदूम माहिमी सुबह को चले हैं और सोचते हैं कि अब तो आज तो खिज्र आएंगे नहीं, लेकिन चलो उस जगह को देख लूं जहां मुझे तालीम दिया करते थे। क्या देखते हैं रोज पहले मैं पहुंचा करता था तब हजरत खिज्र आते थे, लेकिन आज तो हजरत खिज्र पहले आ गए हैं, मैं बाद में पहुंचा हूं। इतना कहने के बाद हजरत खिज्र खड़े हो जाते हैं और मखदूम माहिमी कहते सरकार आपने तो वादा किया था अगर इस राज को किसी को बता दिए हो तो मैं आऊंगा नहीं। इतना कहने के बाद हजरत खिज्र कहते हैं हाँ मैं तुमको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन रब का हुक्म है कि खिज्र जितना तेरे सीने में इल्म है मखदूम माहिमी के सीने में उतार दे। मखदूम माहिमी से कहते हैं आ मेरे सीने से लग जा, जितना इल्म मेरे अंदर है सब तेरे अंदर दे देता हूँ। आज पूरी दुनिया में उस
मखदूम माहिमी को लोग जानते हैं और पहचानते हैं। हजरत हजरत ये मखदूम माहिमी के माँ की दुआओं का असर रहा। ये मखदूम माहिमी को अल्लाह ने जो इतना वसी और इतना बुलंद बनाया है, ये किसी और की देन नहीं थी, ये उनकी माँ की देन थी कि माँ की दुआ जब आसमान के कंगूरों से टकराती है तो हाथ बाद में उठता है, रब की रहमतें पहले उतर जाती है। हजरत अगर जिनकी माँ जिंदा है तो आप याद रखो अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है। जिनके बाप जिंदा है ये समझ लो कि ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया है, माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। हजरत कुरान मुकद्दस में अल्लाह के कुरान मुकद्दस में रब्बे कायनात खुद इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनी इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हजरत दुनिया की तमाम दुआएं एक तरफ हो, तुम्हारे माँ की अगर बद्दुआ है सिर्फ तो तमाम दुआएं रद्द कर दी जाएंगी, लेकिन तेरे माँ की वो बद्दुआ तुझे लग जाएगी। और अगर तेरी माँ तुझसे खुश है और अगर वो दुआ कर रही है, पूरी दुनिया बद्दुआ करे, लेकिन तेरी वो बद्दुआ नहीं लगेगी, क्योंकि तेरे ऊपर माओ का साया रहता है। हजरत माँ की वो दुआओं में असर है। हजरत जिनकी माँ ने अपने बेटे को अच्छी तालीम दिया है वो माँ की खिदमत भी करना जानते हैं, माँ के मर्तबे को जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात अपने उस माँ को, उनके माँ को ऐसा आला मनसब पे, ऐसे जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। हजरत ये माओ का असर है। आज दुनिया का आप जायजा ले लो, आज इसी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा माएँ सताई जा रही हैं, सबसे ज्यादा बाप सताए जा रहे हैं। हजरत इसकी वाहिद वजह है कि आज हम अपने बच्चों को तालीम से दूर रखे हैं, आज हम अपने बच्चों को इल्म दीन से दूर रखे हैं। हजरत मैं ये नहीं कहता आप इंग्लिश मीडियम से अपने बच्चे को मत पढ़ाओ, लेकिन इतना पढ़ा दो ताकि बाप का भी एहतराम जान जाए, माँ का भी एहतराम जान जाए, ताकि तेरे बेटे के शादी होने के बाद तुझे बाबाओं के पीछे ना टहलना पड़े, बल्कि ये ना कहना पड़े ये ताबीज बना दो मेरा बेटा मुझे नहीं मान रहा है, ये ताबीज बना दो मेरा बेटा नहीं मान रहा है। अगर तूने अपने बेटे को मुस्तफा की शरीयत पढ़ा दी है तो याद रखो तुझे किसी के दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद ब खुद समझ जाएगा अगर मैं माँ की खिदमत नहीं किया तो मेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा मैदान महशर में। हजरत ये माओ का दुआओं का असर है। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है हजरत अवैस करनी को। हजरत अवैस करनी ऐसे जलीलुल कद्र ताबईन हैं जिनको कौन नहीं पूरी दुनिया जानती है। शबे बारात की रात में जिनके नाम से हम हलवा बना करके फातिहा दिलाते हैं, वही है जो नबी के इश्क में इतना डूबे हुए थे, इतना डूबे हुए थे, नबी का ज़माना पाए लेकिन नबी से मुलाकात ना कर सके। एक ही वजह थी कि उनके साथ उनकी माँ थी, उनकी माँ नाबीना थी, अपने माँ की खिदमतों में लगे हुए थे। एक मर्तबा दिल तो इतना चाहा सरकार से मिल लूं, अपने माँ से इजाजत लेते हैं, माँ मुझे इजाजत दे दो मैं अपने महबूब से मिल लूं। उनकी माँ कहती है बेटा अगर तू चला जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा। इतना कहने के बाद हजरत अवैस करनी कहते हैं माँ ठीक है अगर आप इजाजत नहीं देती हो तो मैं नहीं जाऊंगा। इतना कहने के बाद एक मर्तबा फिर गए और कहते माँ अगर आप इजाजत दे दो मैं अपने उस महबूब का जिसका कलमा तुम भी पढ़ती हो मैं भी पढ़ता हूँ उससे मुलाकात एक मर्तबा हो जाए, मेरे दिल के अरमान पूरे हो जाएंगे। उनकी माँ कहती है बेटा अगर जाना चाहते हो तो फजर के बाद मेरे जरूरतों का सामान मेरे पास रख देना और तुम चले जाना, लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले घर वापस आ जाना। हजरत अवैस करनी अपने ऐसे दीवानों की तरह चल पड़े हैं किरण से मदीने की तरफ और चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। किरण से बहुत
मंजूर था, लेकिन रब्बे कायनात ने उनके आशिकों को इस तरीके से कबूल फरमाया कि किरण और मदीने की सरजमीन को सिमीट दिया। और जब मदीने तैयबा पहुंचे हैं, बच्चों को देखते हैं खेल रहे हैं, लोगों से कहते हैं तुम मदीने के शहर के बच्चे हो, लाओ तुम्हारी आंखों को चूम लो, तुमने मेरे मुस्तफा को देखा है। अच्छा ये बताओ मेरे मुस्तफा का रौजा कहाँ है, मेरे मुस्तफा की कयाम गाह कहाँ है, मेरे मुस्तफा मिलेंगे कहाँ। इतना कहने के बाद बच्चों ने कहा कि चले जाओ मस्जिद नबवी में, वहीं आका तशरीफ फरमा होंगे। हजरत अवैस करनी चले हैं और जाकर के देखते हैं मस्जिद नबवी में कोई नहीं है। फिर सोचने लगते हैं सरकार कहाँ होंगे, मेरे महबूब कहाँ होंगे। उन लोगों ने एड्रेस दिया, जाओ हुजरत आयशा में, हो सकता है सरकार वही हो। हजरत आयशा के पास जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, कहते हैं क्या सरकार है। हजरत आयशा कहती हैं नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले चले गए हैं और अभी आएंगे कुछ देर के बाद। हजरत अवैस करनी कहते हैं अगर मैं इंतजार करता रहा तो सूरज इसी मदीने में डूब जाएगा और मुझे सूरज डूबने से पहले पहले घर पहुंचना है। इतना कहने के बाद कहते हैं कि आए आयशा, मुझे नबी का वो हुजरा दिखा दे, नबी का वो बिस्तर दिखा दे जहां नबी आराम फरमाते हैं, जहां नबी टेक लगाते हैं। ये आशिकों का इश्क था, किस तरीके से बुलंद किया है। न उनको हजरत अवैस करनी आते हैं, नबी जहां आराम फरमाते हैं, कभी उस बिस्तर को चूमते हैं, कभी उस दीवार को चूमते हैं, कभी क्या चूमते हैं और मचलते चले जाते हैं। आंखों से आंसू गिर रहा है, हजरत आयशा देख रही हैं। देखने के बाद चले हैं हजरत अवैस करनी, कहते मेरे आका आएंगे, मेरे महबूब आएंगे, तैबा के शमसुद्दोहा आएंगे, काबे के बदरुद्दोजा आएंगे, शाफ़े रोज़े महशर आएंगे, मेरा सलाम कह देना। इतना कहने के बाद चल दिए हैं, आका तशरीफ लाए हैं, कहते हैं मुझे एक आशिक की खुशबू आ रही है, बताओ कोई आया था आयशा। हजरत आयशा कहती है हाँ एक दीवाना आया था, उसका बाल बिखरा हुआ था, चेहरे पे गर्द था। इतना कहने के बाद आका फरमाते हैं मेरे उस आशिक को क्यों नहीं रोके। कहते सरकार आपको जानता है इतना इश्क उसे था, लेकिन रुक क्यों नहीं गया। सरकार फरमाते हैं इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ है, अपने माँ की खिदमत करता है, अपने माँ से इजाजत लेकर के आया था। इतना कहने के बाद नबी का इंतकाल होता है, नबी चले जाते हैं। नबी का इंतकाल होने के बाद हजरत अवैस करनी अपने माँ के पास आते हैं, कहती है उनकी माँ बेटा क्या मुलाकात हुई है जिस महबूब के पास गए थे। कहते कि अम्मी जान जिस महबूब के पास गया था उस महबूब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। सरकार ने हजरत उमर और हजरत अली को एक जुब्बे मुबारका दिया था और ये कहा था मेरा अवैस से सलाम कह देना, उस आशिक से सलाम कह देना। सहाबों के झुरमुट में एक मर्तबा मेरे पैगंबर ने उसी अवैस के बारे में कहा था ए सहाबा ये बताओ इस दुनिया में ज़मीन के ऊपर सबसे बड़ा आशिक कौन है। सहाबा कभी सिद्दीक़ अकबर का चेहरा देखते थे, कभी उमर का चेहरा देखते थे। लोग ये कहते थे हो सकता है फारूक आज़म होंगे, हो सकता है अबू बकर सिद्दीक होंगे, लेकिन सरकार ने कहा था नहीं मेरा आशिक ऐसा है जो इस मजलिस में नहीं आया है। लोगों ने कहा सरकार वो आशिक कैसा है जो इस मजलिस में नहीं आया है, वो है कौन। सरकार फरमाते हैं वो किरण के अंदर का रहने वाला है, किरण का रहने वाला है जिसका चर्चा आसमान पे फरिश्ते किया करते हैं। हजरत सरकार की बारगाह में ऐसे मकबूल हैं। सरकार ने जब भेजा हजरत फारूक आज़म को और हजरत अली को कि ये मेरा सामान जाके दे देना और उनसे दुआ करवा लेना उम्मत के बारे में और मेरा सलाम अर्ज कर देना। लोग पूछते हुए गए फारूक आज़म, लोगों ने एड्रेस दिया कि वो देखो चरागाह में ऊंट चरा रहे हैं। इतना कहने के बाद लोग करीब गए और कहते हैं सरकार आप
आपको सलाम किए हैं और अपने उम्मत के बख्शिश के लिए दुआ फरमाने के लिए कहे हैं और सलाम अर्ज किए हैं। लोगों का सलाम का जवाब, मुस्तफा के सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं मेरे मुस्तफा कैसे थे, मेरे मुस्तफा का चेहरे अनवर कैसा था, मेरे मुस्तफा की जुल्फ कैसी थी। इतना कहने के बाद फारूक आजम कहते हैं तुम इतने बड़े आशिक हो लेकिन कभी सरकार से मिलने के लिए क्यों नहीं आए, इश्क का दावा करते हो लेकिन मिलने क्यों नहीं आए, आकर के देख लिए होते नबी का हाल। हजरात इतना कहने के बाद सैयदना अवैस करनी का जुमला सुनो। सैयदना अवैस करनी फरमाते हैं फारूक इश्क का दावा कर रहे हो लेकिन तुम ये तो बता दो मेरे सरकार की भाव मिली हुई थी या जुदा हुई थी, तुम बहुत करीब से देखे हो। हजरत अली भी चुप है, हजरत फारूक भी चुप है, लेकिन चुप होने के बाद कहते मैं कौन सा जवाब दूं। लेकिन हजरत अवैस करनी ने कहा था अगर करीब से देखोगे तो मेरे सरकार की भाव मुबारक जुदा हुई थी और दूर से देखोगे तो मिली हुई थी। इतना कहने के बाद लोग कहते हैं मानना पड़ेगा सबसे बड़ा आशिक यही है। हजरात ये इश्क भी मिलता है तो माओ के दुआओं के सदके हजरात हमको अपने माँ की खिदमत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।